Hello dear students. So today we are going to discuss about the paper 5. Okay, paper 5 you can see here. Okay. And this paper already been asked in 11 to 13 JPSC mains. Okay. So 11 to 13 JPSC mains, and that to paper 5 you guys already must be knowing that it's nothing but Indian economy, globalization and sustainable development. Okay, and this paper is more of your dynamic in nature. Okay, dynamic in nature, and few static concept also there. Okay, few static concept also there which can be asked in your subjective question. Okay, but mostly this is dynamic and more of technical in nature. Okay, this paper is more of technical in nature. So due to technical in nature plus dynamic in nature, this paper becomes more difficult. Okay, as compared to other subjects or other paper, you can say paper 3, paper 4, or even paper 6. Uh, if you combine all GS paper, this paper is more difficult because here due to this technicality you need to understand few concepts. Okay, without concept, if you are not having the proper concepts, fundamental concept, then you will not be able to tackle this question. Okay, so okay, coming back to our main agenda of today's discussion. Okay, so what we are going to do in this session is, see guys, one question I can see is asking JPSC repeatedly. Last year in the sense last JPSC, that is nothing but 7th to 10th JPSC, and here also they have been asked. Okay, see here this question. National income. See guys, this is nothing but question is you know coming from national income. Okay, national income accounting. Okay, national income account. So this topic for JPSC is becomes now favorite. This becomes favorite topic for JPSC. So as I said, 7th to 10th JPSC also they have asked one question from same, and 11th to 13th JPSC also this question has been asked. From this topic, and I think this is again 40 marks question, I guess. Okay, let me see if I'm not wrong. Okay, so whatever marks could be, I believe it's 40 marks. But what you need to understand and what you have to write. See, first understand the concept. Okay, if you don't understand the concept or questions, you'll not be able to write. See, the question is asking. What question is asking? Distinguish between net product method. Okay, so here is the concept. First, the term they have asked is net product method. What is net product method? Now you need to understand. Okay, you have to go back to your basics and you ask yourself whether you know this concept or not. The basic concept of net product method, whether you are aware of it or not. And then second concept is factor income method. Now generally people, when they read the national income, okay, national income, so generally they study, that is called value added method. Value added method. Okay, first one. Second is uh, expenditure method. Okay, expenditure method. And third one is nothing but your income method. Right, now guys, income method. But what they are saying, whether it's the income method or it's a factor income method, both are same. There is no difference between income and the factor income method. Okay, of estimating national income. So first we need to give the difference, and this is nothing but your value added method is nothing but your product method. Product method. Okay, so product method is nothing but value added method. Okay, there the concept lies with like GVA and all that, right? So I discuss. So such type of questions, in order to write a better quality of answer, writing answer is one thing, and writing the answer in quality answer, writing quality answer is the different thing.
That's why the difference between writing answer, okay, writing answer and writing quality answer. Writing quality answer. Okay, there is a difference. Now, this difference will decide your rank. I mean cutoff marks, whether you will be able to cross or not. And then which of these methods are followed in India? Second question, this is more of your analytical skills. Here they are checking your analytical skills. Okay, so all together we discuss this question in detail, what you could have been okay written and what not. Okay, so let's discuss. Guys, understood the question? Okay, so now let me go to the board now first. Okay, all right. Okay, fine. Just a second. Okay, okay, just a second, guys. Okay, fine. So now here we are going to discuss. Just a second. I don't need this. Okay, don't need this. Okay, fine. So now let's discuss. Question we understood. Question we understood. Let's discuss one each topic further. So as I said, so first they have asked net product method, right? Okay, net product method. First they have asked net product method. Each one should know about this, right? Net product. Just a second. Net product method. Okay, net product method. What is net product method? Net product method is nothing but, as I said, it's value added method. Okay, value added method. This is what the name of net product method. So everyone, you should know about this, at least this. Okay, then second type of they have asked is nothing but factor income method, right? Factor income method, right? This is what we saw in question. First they have asked the difference between these two. One second, guys. Difference between these two, right? Difference, okay, between these two method, these two type of method. When you are you know uh, what is this? These are nothing but types of calculating national income. Okay, types of calculating. What is all about? This is, these two types are nothing but how you do calculate the national income. So one is nothing but net product method, that is called value added method. Second is factor income method. One more is there, but they have not asking, so I'm not going to write this. Okay, so and then third question they are asking, which of out of these two, which methods are being following or used in India, right? So now we'll discuss the first one in detail. Okay, in detail. So then we'll come to know the all concept behind this. So net product method, okay, and simply you can say here value added method as already been written. Okay, value added method. All right. Now, so simple definition if we'll write, okay, simple definition if we write in one line, what we can write here. Okay, so this is method. Obviously I can we know that this is one of type of calculating the national income. Okay, so in this method I'm not going to write the definition, but simply here what we do, we add up, and we add, or you can say sum. Okay, sum, okay, or total of what? Net value. Here is the keyword net. Net value, okay, added by, just a second, guys, added by, मैं हिंदी में बता दूंगा अभी, है ना, added by all production units, है ना, production all production units
and here you can say right forms. I think this concept you already know, forms and all, right? What is household, what is forms, right? What is government, right? And all that, right? What is external sector, the basics. I think you know all this concept, right? I mean, circular flow of money, I'm not going to that. Okay, circular flow of income or money. Okay, I hope at least you know this concept. Okay, so there the terms comes forms. Okay, so add or sum of net value added by all production units form. Okay, in the economy, you could have written this in the economy uh, where, and what is the time frame? Generally, national income we are counting for a given, a special period. Okay, or you can say one financial year. In the economy during a given period. 6 second. During a given period. Okay, you can say write in bracket generally in 1 year, है ना? One, or you can say one financial year. You could have write this. Okay, now what are the steps to calculate? अंडरस्टूड? इतना करने के बाद आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको लिखना था, है ना, कि नेट प्रोडक्ट। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज लिखना था कि ये दोनों जो है आपका नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, नाउ एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना था। सो नेट प्रोडक्ट मेथड को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग दैट इट्स वैल्यू एडेड मेथड। इन दिस मेथड व्हाट वी डू जनरली, add and sum of all net value. Net value means what? I'll discuss. There will be one intermediate value. Okay, one will be your uh, entire output, and one will be your intermediate goods. Okay, so we minus that. So we'll come to that and we'll see. So here, uh, let's break and this. Okay, now steps. What are the steps in order to calculate this? Okay, steps में हम क्या करते हैं जनरली? फर्स्ट steps, we are calculating the GVA. One term comes GVA. This is nothing but gross value added. Gross value added. Okay, gross value added. What we do? And for each form, है ना, यहाँ पे आपको लिखना था for each form, हर के लिए। अब बाद में हम किसको, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट, सम कर देंगे फॉर ईच फॉर्म। और ईच फॉर्म, और जीवीए इज नथिंग बट अगेन फॉर्मूला वाइज अगर आप देखोगे, जीवीए इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, और यू कैन से आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट को माइनस कर देते हैं, राइट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, है ना। यहाँ पे आप इसको फाइनल भी लिख सकते हो, और आउटपुट इज ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच का होता है, राइट, इंटरमीडिएट गुड्स। ऑल राइट, नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, अगर देखिए डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट को अगर आपको नहीं पता तो यू कैन लर्न इट। ओके, so here we need to depreciate, means minus, subtract. Okay, subtract, or you can say minus, subtract depreciation, subtract depreciation. Okay, subtract depreciation, one term you should know this, सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मतलब आपका जो भी फिक्स्ड कैपिटल है उसमें से, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड, और छोड़ो भी, यू गेट विल यू गेट कंफ्यूज। सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन कहाँ से? फ्रॉम योर नेट। ओके, फ्रॉम जीवीए, यहाँ से जो जीवीए निकल के आया ना, जीवीए। ओके, एंड जीवीए। ओके, तो अगर हम, आपको पता है, अगर हम दो चीज निकालते हैं, राइट, अगर हम माइनस डिप्रिशिएट करते हैं किसी चीज से ग्रॉस के साथ, हमारा क्या निकल के आता है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट नेट, हमको नेट निकाल के देगा। तो हमको नेट कैसे निकालेगा, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जीवीए, है ना, ग्रॉस, दिस इज ग्रॉस। और ग्रॉस में अगर हम माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, तो इट बिकम्स नेट, राइट। सो इंस्टेड ऑफ जीवीए
we can say that NVA. NVA, and N stands for net. So NVA is, so GVA will become now NVA. So NVA is nothing but GVA, gross value added, right? Minus gross value added minus depreciation, right? Depreciation. This is what you could have written. Okay. Now, second step is done. Third, third, this is basically your net. You can say this is nothing but, I mean, gross. Okay. So if you minus this, you can get it net, right? So you can say net value added. Now, after doing this in third step, okay, whatever we say here, right? What we said, add or sum. ओके, तो हमको क्या करना है, सारे चीज को सम कर देना। ठीक है। हमने क्यों, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, हमने एक 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 फर्म का जो है, एक एक कंपनी का मान के चलो, इसे एक कंपनी कैसे निकाला। तो जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जितने भी फर्म्स हैं, वी नीड टू इंटीग्रेट, मीन्स वी नीड टू ऐड ऑल दोज एनवीए। तो मान के चलिए हमारा ये अभी एक फर्म का एनवीए निकला, तो वी नीड टू for creating the or generating uh, the NDP, because here we don't have now GBA, we this becomes NBA, right? So okay, go to the third page. Okay, and next step is third. Okay, तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक ग्रॉस से हम नेट पे आ चुके हैं, राइट? दिस इज नथिंग बट व्हाट, नेट वैल्यू एडेड मेथड। ओके, और यू कैन से नेट वैल्यू एडेड। ओके, तो नेट अगर वैल्यू एडेड हमको मिला है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी निकलेगा या एनडीपी निकलेगा, आप बताओ। जीडीपी मिलेगा या तो एनडीपी मिलेगा, आप बताओ। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास नेट है, तो हमारे पास जीडीपी नहीं निकलेगा, हमारे पास यहाँ पे एनडीपी निकलेगा, है ना, एनडीपी। तो हम यहाँ से एनडीपी निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, नेट निकालेंगे, एनडीपी, एनडीपी निकलेगा। ठीक है। और एनडीपी इज नथिंग बट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? एंड व्हेन वी आर सेइंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, तो एनडीपी में हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया आपको कि वी हैव डन और कैलकुलेटेड फॉर ईच फॉर्म दैट वी नीड टू combine together, so that is nothing but summation, sigma is nothing but your sum, and this is for NVA, है ना। NVA मतलब हमने निकाल के देखा क्या है, NVA का मतलब नेट वैल्यू एडेड है। अब नेट वैल्यू एडेड को हम क्या करेंगे, है ना, सम कर देंगे ऑफ, दिस इज नथिंग बट वन, है ना, वन फॉर्म। तो यहाँ कर देंगे ऑफ ऑल फॉर्म्स, all forms. Okay, sorry, forms means just a second, not this form. Okay, there is a spelling mistake. So when say all forms, okay, means you can say company all forms, or mathematically you can write where n equals to 1 to n, okay, n v a n n, और आप ये n का वैल्यू एक एक करके जितने भी फॉर्म्स है उसका करो, तो ये आपको एनडीपी निकाल के दे देगा, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना था, फोर्थ स्टेप इज नथिंग बट, नाउ you got the NDP, right? You have NDP, from NDP अगर हम NDP में हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, एक चीज आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई थिंक यू नो दिस कॉन्सेप्ट, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे किसमें, एंड ये जो हमारा एनडीपी निकल के आया है, एनडीपी, तो दिस बिकम्स योर नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, राइट? तो दिस बिकम्स योर, तो एनएनपी निकल गया, राइट? नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट? क्या करता है जो हमारा ये, और ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एक तरह से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, वो जैसे मान के चलिए किसी देश में, इंडिया है फॉर एग्जांपल, ये इंडिया है,
है ना। कोई अगर अमेरिका में रहता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, इंडिया का ही लोग, और कुछ यूएसए के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा एक तरह से प्लस माइनस का इनकम में निकल के आता है ना, तो जनरली हमारा ये निकलता है नेगेटिव। ओके, नेगेटिव होता है। एनएफआई इन केस ऑफ इंडिया मोस्टली नेगेटिव होता है ना, कि यूएसए का कितना इंडिया में रह रहा है, उनका इनकम कितना है, इंडिया का क्या रहता है, इस टाइप से ये चीज़ निकल के आता है। तो हम फाइनली हम आ जाते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट। तो अब हमारा निकल गया, हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा एक ये चीज आ गया है कि हमारा पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, नेट प्रोडक्ट मेथड, राइट। नेट प्रोडक्ट मेथड, हम कहाँ पे आ गए, नेट आई मीन नेशनल प्रोडक्ट, दिस इज, यही आपका हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था नेट नेशनल प्रोडक्ट था, राइट। नेट प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, राइट। तो आप, और आपको क्या करना था, आपको अगर और थोड़ा डिटेल्स में जाना था तो आपको एक एग्जांपल भी दे देना था, ठीक है। आपको क्या करना था, एग्जांपल भी दे देना था, है ना। तो वो आप एग्जांपल भी दे देते तो और भी अच्छा हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ऐसे देते आप, है ना, मान के चलिए, जैसे कि मैंने बताया एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया, है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, एक माइनस किया था ना, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट को मैंने एक माइनस किया था, राइट। तो अगर आपको अगर एग्जाम्पल दे देना, तो एग्जाम्पल देना मतलब कि आपको देना ही था। अगर ये चीज़ आपको एग्जाम्पल देते कैसे, मान के चलिए कि कोई एक किसान है ना। लेट्स से देयर इज ए वन किसान फार्मर, ओके। ये फार्मर क्या करता है, 100 रुपया का, आपका एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं एनसीईआरटी से दे रहा हूँ, ठीक है, आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। अगर 100 रुपया, अगर उसने क्या करता है, व्हीट प्रोडक्शन करता है ना, गेहूं का प्रोडक्शन करता है, व्हीट प्रोडक्शन 100 रुपया का मान के चलिए, और ये सेल कर देता है बेकरी वालों को, है ना, बेकरी वालों को सेल करता है, ही सोल्ड आउट हिज विथ 50 रुपीज, ओके। ये 100 रुपीज का था, 50 रुपीज का था, ठीक है, बेकर वाला का। और बेकरी वाला ने क्या किया, है ना, फाइनल जो ब्रेड बनाया इसका, ठीक है, ब्रेड बना के इसने क्या किया, 200 में सेल किया, सेल किया। तो अगर आप देखोगे टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया यहाँ पे, है ना, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो सिंपल सबको ऐड कर दो, यही आप करते हो, है ना, कि सबको ऐड करते हो। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले 100 को ऐड करेंगे, तो दिस इज योर वन टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। प्लस हम इसका करेंगे 200, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो इशू आएगा, तो हमारा अगर देखोगे तो टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 100 प्लस 200, दिस बिकम्स 300, एंड 300 इज ए प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज वी हैव हियर प्रॉब्लम विद डबल काउंटिंग, ओके, प्रॉब्लम विद डबल काउंटिंग। तो अगर यही सब अगर आप एग्जाम्पल में दोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। एग्जाम्पल डबल काउंटिंग कैसे हो गया, देखो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल कैसे हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या, बेकरी को उन्होंने बेचा 50 रुपये में, बट टोटल प्रोडक्शन 100 रुपया था, तो मान के चलिए एक 50 रुपया का जो गेहूं है खुद रखा है, और 50 बेकरी वालों को दिया है, राइट। तो हम, बट हमने क्या ऐड कर लिया, इसका पास जो 50 था उसको भी ऐड कर लिया, 100 प्लस इसका 200, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको जो माइनस है उसको हमको ये करना पड़ेगा, राइट। तो हम, कैसा होगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, देखो फार्मर के पास इनिशियली कितना था, फार्मर के पास 100, ठीक है। इसके पास यहाँ पे ये आपका फाइनल है, इसके पास कोई इंटरमीडिएट नहीं है, प्लस, है ना। अ, अभी अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा जो बेकरी को बेच दिया, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो बेकरी को दिया था 50 और 200, राइट। तो बेकरी का ये तो इसका खर्चा में आ गया, राइट। तो इसको भी टोटल थोड़ा जोड़ सकते हो, तो अभी इसको क्या करोगे, 200 में इसको माइनस कर दोगे, राइट। तो ये 150 आ जाएगा, दिस बिकम्स 250, करेक्ट। इसके लिए तो इंटरमीडिएट हो गया ना। अब मान के चलो एग्जाम्पल फिर से देता हूँ, ये गेहूं था, गेहूं से आपके पास अभी मतलब ब्रेड बना नहीं है, है ना। बेकर के पास गया, बेकर के पास बेकरी ने इसको, एक सेकंड, इसको ब्रेड बना दिया, है ना, ब्रेड बना दिया, यहाँ पे ब्रेड बना दिया। तो मान के चलिए 100 रुपया, है ना, और इन्होंने 100
तो टोटल इसके पास किसान जो था, टोटल इसका था कॉस्ट, मतलब मान के चलिए ये 1 क्विंटल बनाया, मान के चलिए प्रोडक्शन किया है ना, 1 क्विंटल प्रोडक्शन किया है, और इसको मान के चलिए इसने सिर्फ 50 केजी दिया, एग्जाम्पल है ना, और 50 केजी का अभी एज्यूम कर लेते हैं कि 85 रुपया, ठीक है, 1 रुपया केजी के हिसाब से, ऐसा होता नहीं है बट लेट्स एज्यूम दैट। तो अब जो बेकरी वाला का तो ये तो कॉस्ट हो गया, है ना, ठीक है, और ये बेच कितना रहा है ब्रेड में, तो 200, लेकिन ये तो इसका इनपुट है ना, लागत है, तो अब इसको हम 200 को हम टोटल प्रॉफिट नहीं बोल सकते, माइनस करना पड़ेगा, तो इधर ये कितना हो जाएगा, ये 150, ये 150 प्लस इधर इसका 100, राइट, ये 250, और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया था, है ना, तो इसको 50 को जो इंटरमीडिएट है उसको नहीं हटाया था, सो दैट इज नथिंग बट योर डबल काउंटिंग इशू, ये एग्जांपल देना था। ऑलराइट, क्लियर हो गया, ओके, चलते हैं आप नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या करेंगे अभी, तो आपको समझ में आ गया, है ना, आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हमको माइनस करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको बताया, तो यहाँ पे दोनों चीजें, यू कुड हैव डन दिस, है ना, यू कुड हैव डन बोथ द थिंग्स, वन इज ऑलरेडी यू डिस्कस, इंटरमीडिएट को हमको क्या करना है, माइनस करना है, एंड थर्ड वन डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना है, राइट, और डेप्रिसिएशन को कैसे माइनस करते हैं, उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं आप, तो उसका भी एग्जाम्पल अभी आप थोड़ा सा दे देता हूँ मैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने बताया कि अगर नेट, है ना, नेट वैल्यू एडेड है, माइनस हमको अगर अगर निकालना है, तो हमने क्या किया, जीवीए से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, है ना, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान के चलिए कि आपका कोई मशीन है ना, मशीन है, राइट, कोई मशीन है, ठीक है, और ऐसा समझो कि अगर आप 10 रुपया 100 रुपया का कोई अगर आप बना रहे हो प्रोडक्ट, है ना, कोई प्रोडक्ट है, आपको कॉस्ट लगता है 100 रुपया, ठीक है, और 20 रुपीज़ लगता है उसका, मान के चलिए मटेरियल यूज जो हो रहा है ना, इंटरमीडिएट गुड्स का, ठीक है, और तो आपके पास कितने चीज़ें हो गई, पर लेके करके तो आपने फॉर एग्जांपल आपने पेन ही बनाया, है ना, पेन बनाया, और पेन का जो टोटल बन गया कॉस्ट उसका 100 रुपीज़, ठीक है, बट पेन बनाने के लिए खर्चा कितना हो गया आपका, आपका 20 रुपीज़ का मटेरियल भी लग गया, है ना, मटेरियल लगा, प्लस जहाँ पे जो सामान का यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, तो उसका मान के चलिए आपको 10 रुपया क्या लग रहा है, आपको डेप्रिसिएशन, क्योंकि मशीन का वैल्यू जो है डे बाई डे क्या होता है, घटता है, तो आप नहीं बोल सकते कि हमारा जो 100 रुपीज़ है टोटल प्रॉफिट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा, प्लस 10 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए अगर जीवीए निकालना हो, है ना, तो ग्रॉस में से हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, राइट, तो जीबीए में क्या हो जाएगा, 100 - 20, दिस बिकम्स 80, ठीक है, ये हमारा जीवीए है, और ये हमारा अगर एनवीए निकालना हो, तो एनवीए क्या निकालेंगे 80 में भी फिर माइनस हम डिप्रिसिएशन को निकाल लेंगे, तो हमारा 70, राइट, तो ये भी आपको लिखना था, करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीज आपको डेफिनेशन में बता दिया था कि पहले क्या करना है आपको, जीवीए निकालना है, जीवीए में टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम इंटरमीडिएट का निकाल देंगे, तो हमने क्या किया, इंटरमीडिएट का पेन का क्या कॉस्ट था, है ना, टोटल हमारा प्रोडक्शन हुआ, मतलब कॉस्ट जो निकल के आया पेन का 100 रुपीज़, बट हमने देखा कि 20 रुपया मेरा मटेरियल का लगा है, तो सबसे पहले निकाल दिया, दिस बिकम जीवीए। अगर हमको फिर से नेट निकालना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो मशीन के लिए जो हमारा डिप्रिसिएशन है, जिसको हम वेयर एंड टीयर बोलते हैं, राइट, वेयर एंड टीयर, तो उसको मैंने माइनस कर दिया उसको, और हम एज्यूम करके चल रहे हैं मेरा मशीन का जो वैल्यू है ना, धीरे धीरे घट रहा है, और उसकी कीमत कुछ में अंदाजा से 10 रुपीज़ माना, तो 10 रुपीज़ घटा दिया, तो यू हैव नाउ जीबीए विथ 80 रुपीज़, एनबीए विथ 70 रुपीज़, ये आपको एग्जाम्पल देना था। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट में हम अभी क्या था हमारा, सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज, चलिए हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हमारा क्या था, फैक्टर मेथड को हमको एक्सप्लेन करना था, राइट, ओके, क्लियर हो गया, फैक्टर मेथड को हमको ये, अच्छा, थोड़ा सा एडवांटेज और ये भी आप दे सकते थे यहाँ पे, अच्छा, जब हम कंपेरिजन करेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि डबल काउंटिंग का इशू वगैरह, ठीक है, हम अभी क्या आते हैं, विल कम टू फैक्टर इनकम मेथड, ओके, फैक्टर इनकम मेथड, ओके, फैक्टर इनकम मेथड। नाउ
What is factor income method? Factor income method, just a second guys. Okay, second part of the question is factor income method. यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों का? So this all comes with your this one concept, okay, and your how much you have read it method. So factor income method में क्या करेंगे हम? You know this already, right? आपने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा होगा. अभी यहाँ पे लिखना नहीं, मैं आपको जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है ना. आपने 2 सेक्टर पढ़ा होगा है ना, 3 सेक्टर पढ़ा होगा, 4 सेक्टर पढ़ा होगा, राइट. बेसिक स्टार्टिंग एनसीईआरटी में यहीं से पढ़ते हो आप लोग है ना. सबसे पहले क्या करते हो, एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है, राइट. फर्म ना, हाउस होल्ड ये इसको सप्लाई करता है, ये इसको सप्लाई करता है, सर्कुलर फ्लो है ना. बीच में फिर अगर ये 2 सेक्टर है तो ये मॉडल हो गया है ना. अगर फिर 3rd सेक्टर है तो गवर्नमेंट आ जाएगा है ना. अब फिर 4th सेक्टर है तो फिर आपका मार्केट भी आ जाएगा, राइट. ये 4th सेक्टर मॉडल होता है. तो ये सब में अभी इस पे नहीं जाते हैं, डायरेक्टली कमिंग बैक टू द आवर क्वेश्चन. तो इसमें क्या होता है, देखिए आप ये जैसे यहाँ पे आपने स्टेप्स निकाले. कैसे स्टेप्स निकाले? आपने जीवीए निकाले है ना, फिर अपने सब्सट्रेट के डेप्रिसिएशन को तो आपको एनवीए निकाला और एनएनपी निकाल दिया, राइट. एनबीए निकाल दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी स्टेप वाइज निकालते हैं हम. यहाँ पे क्या होगा हमारा पहला स्टेप्स. स्टेप्स में हम क्या बात करेंगे? स्टेप्स में हम बात करेंगे, देखिए जो भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. देखो फैक्टर इनकम से आपको समझ में आ गया होगा. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर होती है ना. सो दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट. तो फैक्टर क्या क्या होता है आपको पता है? लैंड, लेबर है ना. लैंड, लेबर, देन क्या होता है? कैपिटल, राइट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, तो नेक्स्ट पे हम आपको बता देते हैं. तो क्या क्या होता है ऑल फैक्टर इनकम? क्या होता है फैक्टर इनकम में? पहला क्या होता है ना, जो लेबर होता है, एक एक करके जाते हैं ना. लैंड, लेबर, कैपिटल मैंने बता दिया. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ओके, तो हम क्या करेंगे? दिस आर द नथिंग बट व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना. इफ दिस आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग, question is asking is nothing but factor income. This is what is the important. Factor income method is nothing but factor of production, right? Factors of production. You have to understand this. So factor of production में लेबर आ गया, तो लेबर को क्या मिलता है? लेबर is getting okay in return as the wages and salaries, okay, earned by labor. Similarly, rent और रेंट और यू कैन से लैंड ओनर और लैंड. मैंने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल. तो लेबर हो गया, लैंड को भी लिख देते हैं है ना. लैंड और स्लैश में डाल दो लैंड ओनर. ओके, लैंड ओनर. इसको क्या मिलता है भाई? इसको क्या मिलता है? इसको रेंट मिलता है, ठीक है. इसको यहाँ पे पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है. और जो लैंड दिया है फैक्ट्री को, फर्म्स को, उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है? उसको उसको रेंट मिल रहा है, ठीक. देन कैपिटल. कैपिटल मतलब पूंजी. पूंजी में क्या मिलता है? इंटरेस्ट. पूंजी में क्या मिलता है? इंटरेस्ट, राइट. जो भी आपने कैपिटल प्रोवाइड किया है ना. फॉर एग्जांपल बैंक, बैंक ने क्या दिया आपको? कैपिटल. तो बैंक को क्या क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज नथिंग बट यू कैन से इनकम अर्न बाय कैपिटल प्रोवाइडर्स, राइट. कैपिटल प्रोवाइडर्स, राइट. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. फोर्थ हमारा बच गया इंटरप्रेन्योर. इंटरप्रेन्योर क्या करता है? उसको प्रॉफिट होता है ना. जो जिसमें पूंजी लगाया है, जो मकान, मतलब ये मकान बोलो, जो फर्म्स है ना, फर्म्स का जो मालिक है, उसको ऑल ताम झाम करने के बाद क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, राइट. प्रॉफिट. दैट्स व्हाई वी से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? फोर्थ कंपोनेंट इज नथिंग बट एंड फोर दिस आर द व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज आई सेइंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. सो प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा आपका जो इनकम, इनकम ना, इनकम अर्न बाय
अर्न बाय एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स। ओके, समझ में आ गया। और इसी को मेथड को लिख दो, तो है ना, तो आप सिंपल करो, यहाँ पे भी अगर हम निकाल देंगे नेट नेशनल इनकम, ओके, नेट नेशनल इनकम, तो हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, है ना। यहाँ वेज को हम सिंपल लिख देंगे डब्लू वेज, है ना, इसको रेंट आर, देन योर यहाँ पे इंटरेस्ट, तो प्लस आई, यहाँ पे प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पे जो एन एफ आई यहाँ पे ऐड किया था, याद आ रहा है कुछ, यहाँ पे देखो एन एफ आई को ऐड किया था, एन एफ आई को ऐड किया था, तो यहाँ पे भी एन एफ आई को ऐड कर दो, यहाँ पे भी एन एफ आई को ऐड कर दो, प्लस एन एफ आई ए, ठीक, हमको यहाँ से मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया। ओके, दिस इज नथिंग बट एन एन आई। ओके, तो हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दो, है ना, मतलब हमको एक टेबल बना के समरी टाइप से बना देना था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा इंडिया, तीसरा क्वेश्चन भी पूछा है कि इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, ठीक है। तो हम एक सेकंड ये कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम नेट, हमारा पहला था नेट प्रोडक्ट मेथड, है ना, जीबीए जिसको बोलते हैं ना, नेट प्रोडक्ट मेथड। ओके, और यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं जो फैक्टर इनकम मेथड है, राइट, फैक्टर इनकम मेथड। ओके, और हमने देखा कि इसका पहला पॉइंट लिख दो, हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये क्या करता है, प्रोडक्शन साइड को डेटा को लेता है, राइट, इन ईच फॉर्म्स प्रोडक्शन, है ना, और सबको ऐड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इनकम को देखता है, हर इंडिविजुअल का इनकम को देखता है ना, हर इंडिविजुअल का इनकम, अगर लेबर है उसका देखा, लैंड का देखा, लैंड ओनर का देखा, सबको देखा, ठीक। और ये क्या पे देखता है, सब फर्म्स को देखता है, कंपनी साइड पे देखता है, मतलब प्रोडक्शन को देखता है, ये इनकम को देखता है, राइट। सेकंड में ये क्या करता है, सबको ऐड करता है, सम करता है, ठीक है, किसको, ध्यान रखिएगा, नेट, नेट को, राइट। ये क्या करता है, सबको, ये भी ऐड करता है, किसको, है ना, मैंने बताया है फॉर्मूला, डब्ल्यू प्लस आर प्लस सबका कर, यहाँ पे भी ऐड कर रहा है, दैट यू हैव टू राइट, ऐड ऑल इनकम सीक्वेंस, है ना, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ इनकम, है ना, फैक्टर्स ऑफ इनकम, ठीक है। थर्ड, ये क्या करता है, डबल काउंटिंग करता है, ठीक है, मतलब डबल काउंटिंग को अवॉइड करता है, अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है, अवॉइड, ए वी ओ आई, मतलब इसको हटाता है। और है ना, इस पे इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल बोल सकते हैं आप, ठीक है, डबल इनकम से नहीं, ओके। तो हमारा हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो, ये एक और है, फाइनल हमको क्या निकाल के देता है, ये हमको एनएनपी देता है ना, प्रोडक्ट, क्यों क्यों देता है एनएनपी, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट साइड पे काम करता है, मैंने बताया कि प्रोडक्शन साइड पे काम करता है। और तो प्रोडक्शन तो प्रोडक्ट निकाल के देखा है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये क्या कर रहा है, इनकम साइड पे जा रहा है ना, इनकम साइड पे, तो ये क्या निकाल के देगा, एन एन आई, मैंने वही आपको बताया अभी, कि ये क्या निकाल के दे रहा है, एन एन आई निकाल के दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकम साइड पे जा रहा है। और ये क्या निकाल के दिया, हमारा एन एन पी निकाल के दिया, राइट, ये तो एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये देखो एनएनपी निकाल के यहाँ पे दिया, राइट। ये चीज अपने कंपेयर करके लिखना था, है ना, और भी दो चार पैरामीटर होते हैं ना, तो कौन सा ये आप ये भी डाल सकते थे, है ना, ये होता है अगर आपका हर सेक्टर का, क्योंकि आप प्रोडक्ट मेथड पे जा रहे हो ना, तो ये सुइटेबल होता है कि अगर आपको सेक्टोरियल ग्रोथ देखना है कि प्राइमरी सेक्टर पे कितना हो रहा है, सेकेंडरी पे कितना हो रहा है, टर्सरी पे कितना हो रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं कि सुइटेबल फॉर सेक्टोरियल, है ना, हर सेक्टोरियल इकोनॉमिक ग्रोथ और समथिंग, है ना, इकोनॉमिक डेटा समथिंग, है ना, सेक्टोरियल को करता है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको टैक्स कलेक्शन में मदद करता है, क्यों, क्योंकि आपका इनकम पे सीधे ये पहुंच रहा है ना, कि आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो, तो उसको अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे कुछ करना है, ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम करना है, बेटर टैक्स सिस्टम करना है, तो वो उसको यूज करेगा। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया में दोनों को फॉलो करता है ना, तो यहाँ पे आपका इनकम पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो इंडिया इसको भी यूज करता है,
फैक्टर इनकम को। और ये आपका सेक्टोरियल जो आपका परफॉर्मेंस मेजर अगर करना हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इसको भी यूज करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि इंडिया ने इंडिया में दोनों को यूज किया जा सकता नहीं है, किया जाता है, राइट। और आपका जो भी जो नॉर्मल डेटा है, तो वो भी लिख देना था कि सीएसओ के बारे में, राइट। जो सेंटर स्टेटिकल ऑफिस है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, MOSP है, राइट। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। मोस्पी को क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, मोस्पी। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम जो काउंटिंग होती है ना, यही मिनिस्ट्री के अंदर होती है। CSO जो डिपार्टमेंट है ना, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, राइट, इसी के अंदर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो ये सब आपको देना था, तो आपको दोनों चीजें। आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इंडिया में कौन सा यूज होता है, क्यों होता है, फैक्टर इनकम क्या है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट मेंस आंसर, ओके। That's all for today, guys, and thank you so much.